السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے دوستوں ساتھیوں، آج آپ کے درمیان میں ویڈیو بنانے کا مقصد کہ آئے دن مجلس اتحاد المسلمین کو مسلسل کسی نہ کسی بات پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ نشانہ بنانے والے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ملت اسلامیہ کا نقصان چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایکتا ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اور یہ تمام دیکھتے ہوئے ان کا نام چڈی گینگ رکھا گیا ہے، اور چڈی گینگ جب سے نام رکھا گیا ہے تب سے لے کے اب تک ہر مخالفین مجلس پریشان ہے، ہیبت میں ہے، خوف زدہ ہے، اور ہر تھوڑی دیر کو جا کے پینٹ کھول کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری چڈی کہیں سے دکھ تو نہیں رہی اور کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہماری چڈی گینگ کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ چڈی گینگ کا وہ تمام عوام کو پتہ چل چکا ہے۔ اور یہ چڈی گینگ کا سب میں بڑا سرغنہ کوئی ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، تو اس کا نام امجد اللہ خان خالد ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے اندر الیکشن لڑا گیا، اور امید کی گئی کہ اس مرتبہ بھی جیت حاصل کریں گے، لیکن اللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی قسمت میں ناکامی اور جو ہے صرف ناکامی رکھا۔ اور ایک واقعہ سنا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب 3 دسمبر کے دن کاؤنٹنگ کا وقت چل رہا تھا، ویسے وقت میں ان کو کہتے کوئی 5 پولیس والے پکڑ کے روئے کہتے، نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، کیوں بولے تو انہوں ہار رہے، انہوں نہیں جیتے بول کے روئے کہتے۔ یہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پہ، اللہ کی بے شمار لعنتیں ہو جھوٹ بولنے والے پہ، کیونکہ ہم کاؤنٹنگ سینٹر کے اندر نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں موجود تھے، ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا۔ ان آنکھوں نے یہ منظر ضرور دیکھا کہ جو کہہ رہا ہے مجھ کو 5 پولیس والے پکڑ کے رو رہے تھے، اس کو ہم نے تنہا بیٹھ کر اندر جہاں الیکشن ایجنٹس اور الیکشن کینڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں وہاں جانے کے راستے میں بیٹھ کے بیواؤں کی طرح آنکھ سے آنسو بہا رہا تھا، اور یہ خواب جو اس کا RSS کو مضبوط کرنے کا یاقوت پورے کے اندر تھا وہ ٹوٹ گیا، اس پہ افسوس کر رہا تھا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی بے شمار لعنتیں ہوں۔ کب تک عوام کو دیوانہ بناؤ گے؟ کب تک عوام کے ساتھ جو ہے دھوکہ دہی کرو گے؟ تمہارے والد اکبر الدین اویسی صاحب سے مقابلہ نہیں کر سکے، تم کہاں سیاست کی بات کر رہے ہو؟ تم کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ تم کس قوم کی بھلائی کی بات کر رہے ہو؟ جب سے تمہارے والد محترم اس دنیا سے گزرے، تم ایک کارپوریٹر کی سیٹ نہیں جیت سکے، اور کارپوریٹر کی سیٹ جو جیتے تھے عوام کو ستانے کے کارن، عوام کا کام نہ کرنے کے کارن، صرف باتیں، صرف ویڈیوز بنانے کے کارن، صرف جھوٹ پھیلانے کے کارن وہاں کے عوام نے تم کو کارپوریٹر سے بھی جو ہے محروم کر دیا۔ اور آج بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے خواب دیکھیے آپ کہ حلقہ یاقوت پورے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین یقیناً جو ناراضگی عوام کے دلوں میں ہے تھوڑی بہت اس کو دور کرے گی۔ جس کے کوئی کام میں رکاوٹ ہوتی ہے تو مجلس اس کا کام کر کے دے گی، اور مجلس کے ہی پاس عوام آتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ویڈیوز بنا کے چندہ حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد بلدی مسائل تمہارے حل کروانا ہے۔ ہمارا مقصد جو ایک MLA کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک کارپوریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک سیاسی جماعت کی جیتی ہوئی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کا ہے، اور ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آنے والے MP الیکشن کے اندر جن لوگوں نے ہم سے ناراضگی ظاہر کی، انشاءاللہ وہی لوگ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ آج عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہچانیے، اپنے ہمدرد کو پہچانیے، اور تماشا کرنے والے جوکروں کو پہچانیے۔ یہ ایوان اسمبلی میں جا کر آپ کی کس طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں؟ جو ایک ڈائس سے، ایک اسٹیج سے کھڑ کر عوام کے درمیان میں رہ کر
मजाकिया बातें करते हैं, फाहिश बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं और हमारे और आपके सामने हमारे भाइयों के इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं, उनसे कैसे हम वफा की और ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? एक कारपोरेटर, पठान कम्युनिटी, हमारे पठान भाई इनको जिताकर नहीं लाए। हमारे पठान भाई इनसे नफरत करते हैं, हमारे पठान भाई इनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां के जो बहादुर पठान हैं, वहां के जो बहादुर पठान भाई हैं, वो जानते हैं कि ये खिदमत करने के लिए नहीं, ये तमाशा करने के लिए आया। और पठान बोले तो कैसा रहना, पठान बोले तो दुश्मनी की बातें की जा रही है। अरे पठान तो हमदर्द का नाम है, पठान तो दरिया दिल का नाम है, पठान तो एक अच्छे इंसान की पहचान है, पठान का लक़ब उसको दिया जाता है। पठान वो कहलाता है जो मजलूमों के साथ खड़ता है, जो ईमानदारी और हक की बात करता है, अपनी जबान खोलता है तो इंसानियत की बात करता है। और इनकी जबान खुल रही तो उनके ऊपर अश्लील तनकीदें, इनके ऊपर बेफजूल की तनकीदें और दय से खड़कर चिचोरे और जोकरों की बातें करना इनका मकसद बन चुका है। आप लोगों को समझना चाहिए। आगे आगे इनके ऊपर बराबर बोलेंगे, इनके ऊपर बताएंगे कि डेवलपमेंट के नाम पे याकूतपुरे में क्या हुआ। पूछ रहे, एक नल का पानी टाइम पे बंद नहीं होने की वजह से उसका वाल सड़क पे बहता है, तो खड़ के एक शख्स से पूछा जाता है ये कै का पानी है, तो वो शख्स कहता है कि नल का पानी है। तो ये बेवकूफ कह रहा गटर का पानी है। ऑफिसर, कौन से ऑफिसर को फोन कर लिया कि करके बोल रहा अगर कल तक नहीं रुका तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। अरे बेवकूफ, अरे नाअहल, तेरे को धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई मंजलिस के इब्तिदाई को कह देता तो स्पॉट पे बुला के नल का वाल बंद करा देता था। इतना भी दिमाग नहीं है। फिर अपने आप को वेल एजुकेटेड, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा, अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। मंजलिस का कोई इब्तिदाई को बुलाते तो बेचारा वाल बंद कर देता था, बंद करवा देता था किसी लाइनमैन को बुलाकर। ऑफिसर को फोन करके कहा जा रहा है। तो समझिए कि तमाशा किस तरीके से हो रहा है। हल्का याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या काम करवाई है। और हमारे मुताल्लिका एमएलए जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब हल्के नामपल्ली के एमएलए थे। आपकी खिदमतें बड़ी शानदार, बड़े चर्चे आपकी खिदमतों के थे। आप याकूतपुरे में आए तो तीसरे दिन, जीतने के तीसरे दिन के बाद से सुबह में पहला अगर दौरा करते हैं तो अली कैफे डबीरपुरा डिवीजन के अंदर करते हैं, और उसके बाजू की गली में अली कैफे टू शरफुद्दीन साहब जो वर्क पेंडिंग्स थे उसको इमीडिएट जो है चालू करवाते हैं। और एक सेवरेज लाइन वहां पर डाली जाती है जिसकी लागत जो है 30 लाख के ऊपर है, और उसके अंदर एक सीसी रोड भी है और NP2 पाइपलाइन भी है। तो ऐसे कई अनगिनत काम हल्का असेंबली याकूतपुरे के अंदर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और शुरू होंगे और काम करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो तनकीद भी जायज होनी चाहिए, और तनकीद जायज होगी तो यकीनन तुमको जवाब भी करारा मिलेगा, उसका सवाल का जवाब भी मिलेगा। और अब डरे हुआ है बच्चा ये बोल रहा कि हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इनको लगा दिए, उनको लगा दिए, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। स्टेजों पे ठहर के रोए बस में हुआ, स्टेजों पे ठहर के शाहरुख खान, सलमान खान ये एक्टरा फिक्के पड़ जाना बाबा तुम्हारे सामने। तुम्हारी तारीख रही, तुम्हारे भाइयों की तारीख रही, मजलिस बचाओ तहरीक की तारीख रही कि सिर्फ लफ्फाजबाजी करने के अलावा तुमने कभी किसी का भला नहीं किया। आज चंदा मांगकर, चंदा लेकर लोगों से ना जाने अल्लाह तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा कि कितने पैसे गबन हो रहे और कितने की मदद हो रही। एक वीडियो बनाई जा रही है और हमारी पर्दा नशीन मां बहनों को जलील किया जा रहा है। प्रजा दरबार के नाम पर औरतों को रातों में बिठाकर वीडियोस बनाए जा रहे हैं मदद के नाम पर, और 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए की मदद पर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वो मां बहनों की तस्वीर को, वो मां बहनों की जो है दुख को, दर्द को फैलाया जा रहा है और जिंदगी भर सोशल मीडिया पे उसको छोड़ दिया जा रहा है। अफसोस की बात है, आज मजलिस तुम्हारी खिदमत के लिए है। जो एमएलए की जिम्मेदारी होती है, यकीनन तुम्हारा एमएलए वो जिम्मेदारी को निभाएगा। जो एमपी की जिम्मेदारी होती है, तुम्हारा रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।
बहैसियत एक कारपोरेटर, जो उसकी एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है, वो यकीनन कारपोरेटर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। बहैसियत एक इब्तदाई के जो हमारी जिम्मेदारी होती है, हम दिन रात अवाम के दरमियान में लगे हुए हैं। आपके कुछ तकालीफ है तो हम तक पहुंचाइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम करते आए हैं और आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। मगर ये बात को जानिए, समझिए कि आज ये लोग आपके बीच में आए हैं तो आरएसएस के छोले को छुपा कर आए हैं। आज हमने चड्डी गैंग कहा तो चड्डी गैंग परेशान है, बार बार पैंट को खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि आरएसएस की चड्डी हमारी किसको नजर आ गई। अभी चड्डी के बारे में डिक्लेयर करे तो इतना है बस, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर चिट्टा, हर राज तुम्हारा खोला जाएगा। कैसे चंचलगुड़े के अंदर कारपोरेटर बनने के बाद आवाम की नाराजगियों का अगर कोई चेहरा बना हुआ था तो वह अमजदुल्ला खान खालिद था। आवाम की बरहमी का अगर कोई चेहरा बना हुआ था तो वह अमजदुल्ला खान खालिद था। कितना जुल्म तुम्हारे भाइयों और तुमने नहीं किया चंचलगुड़े के अंदर। जब तुम्हारे वालिद एमएलए थे तो क्या याकूतपुरे की आवाम नहीं जानती यही बच्चे किस तरीके से आवाम के साथ रवैया इस्तेमाल करते थे। तुम किसी के नहीं हुए, तुम किसी के नहीं हो सकते। सिर्फ शर फैलाना, अच्छे काम को चलते हुए तनकीद करना, यह तुम लोगों का फैशन बन चुका है, यह तुम लोगों के रोजगार का एक हिस्सा बन चुका है। और मैं कहना चाहता हूं लोगों को कि आपके दरमियान में कल भी मजलिस थी, आज भी मजलिस है। लॉकडाउन का वाकया याद दिला रहे स्टेजों से खड़ के ये लोग कि राशन हम बांटे, हम करे फलाना। अरे कौन बांटे ये आवाम जानती, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी हमने खड़कर ऐसे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ा, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रहे। और आप पहचानिए कि हालात किस तरीके से हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि हल्का याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमपी इलेक्शन के, जब भी एमपी इलेक्शन होगा, देख लेना कि कितने वोट याकूतपुरे से सदर मंजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को मिलेंगे। हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे कारपोरेटर्स, हमारे इब्तदाई आपके दरमियान में हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी चड्डी गैंग के लोगों से होशियार रहिए। इनका काम आपसी इत्तेहाद को मुसलमानों के तोड़ना है। कैसे कैसे सही मुसलमान एक ना हो पाए, आधे इनकी तरफ चले जाए, आधे यहां चले जाए, इस तरीके का मकसद। अगर कोई आपको भटकाता है तो उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपके दरमियान में आपके एमएलए जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब है, यकीनन कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनको कॉल करिए। और हल्का असेंबली याकूतपुरे के अंदर, दबीरपुरा डिवीजन के अंदर क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और किस तेजी के साथ हो रहे हैं और किस तरीके से आवाम के मसाइल को हल कर कर, आवाम के मसाइल को हल कर कर उनके परेशानियों को दूर किया जा रहा है। और छोटे मोटे मसाइल जो भी है उसको फौरी इमीडिएट काम शुरू किया जा रहा है। यही बताना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सरगर्म कारकुन व नौजवान मुकर्रिर मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद। अल्लाह हाफ़िज़।